Hello everyone. I hope you people are good and happy and healthy. Today I am starting your first chapter, preparation of final account. I discussed all the performers in the last video, and now I am going to start and discuss the important adjustment of final account of TYBCom Sem 5. So first I have to discuss my introduction. I am Professor Zakira Matvankar from Sant Gadge Maharaj College of Commerce and Economics. I am Assistant Professor in Accountancy Department. First I have to discuss the provision for tax and advance tax, and this provision is related to the advance tax under Income Tax Act 1961. Now in this session, first I have to discuss the process of an accounting entries related with the provision for tax and advance tax. Here I written some process and journal entry. What are the process of provision for tax and advance tax? First we have to payment of the advance tax. The first process is payment of advance tax. Second is deduction of TDS on interest income. Third is make a provision for current tax expenses. Fourth is filing the tax return. So these are the four process, and fifth one is adjust for the prior period tax expenses and saving. First हमको payment advance tax देखना है, then deduction of TDS, then we have to make the provision for current tax expenses, and then filing the tax return. And now the adjust, this is the fifth one, adjust for the prior period of tax expenses and saving. So here I discuss some journal entry, and there are the two conditions. First is tax determined is if the tax determined is greater than tax provided, then the entry will be profit and loss account debit to prior period tax expenses, because it's expenses, and of course it should be debited to the profit and loss account. After that the prior tax expenses are debited to the income tax payable or refund fund. If it is a payable, or might be it is a refunded account, it is the same one. Then if tax determined is less than the tax provided, then the entry will be reversed by this prior period tax saving account debit to profit and loss account, because it become your income. So यहाँ पर जो है profit and loss account में ये credit हो जाएगा, और जो again then income tax में यहाँ पर जो credit हुआ था it's become debit, and income tax account debit to prior period tax saving account. So these are the journal entry, and there are the two conditions of we have to compare tax determined and tax provided. And now the sixth process is, the last one is computation of income tax payable और income tax refund receivable. अगर आपको पे करना है तो वी हैव टू पे, और अगर आपका रिफंड हो रहा है, माइट भी आपने ज़्यादा भर दिया है, तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, तो वो किस तरह से रिसीव होगा. सो इस तरह से जो है आपके पूरे प्रोसेस है कि पहले हमको पेमेंट करना है एडवांस टैक्स, उसमें से TDS डिडक्शन होगा, देन वी हैव टू पे द करंट टैक्सेस, देन हमको फाइल रिटर्न करनी है, एंड देन एडजस्ट करना है. अगर हमारा माइट भी एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और अगर हमारा जो है सेविंग होगा तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा. सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स. देन here I have to discuss some that was the journal entry, and here I am discussing your ledger accounts. This is the performer of income tax payable और refundable. यहाँ पर जो डेबिट साइड में एंट्री आएगी आपकी, ये जो हमने लेजर जर्नल एंट्री अभी डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड में वही है. तो एडवांस टैक्स यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, TDS जो ऑन इंटरेस्ट प्रायर पीरियड ये भी डेबिट हो जाएगा, टू प्रायर पीरियड टैक्स सेविंग ये आपका डेबिट हो जाएगा. क्रेडिट साइड पे जो है बाय करंट टैक्स प्रोविजन की एंट्री आएगी, एंड बाय प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और जो भी अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट भी आ सकती है आपकी, डेबिट भी आ सकती है. तो दिस इज द इनकम टैक्स पेबल और रिफंडेबल अकाउंट. Here remember this note, when tax determined is equal to tax provided, जो हमने लास्ट स्लाइड में दिखा, तो या तो ग्रेटर होता है या तो लेस होता है, लेकिन अगर इक्वल होता है अगर कोई ईयर में, मतलब
जो टैक्स सोचा था उतना ही हमको प्रोवाइड करना है, डिटरमाइन किया था उतना ही हमको प्रोवाइड करना है, देन इन दिस केस देयर इज नो any prior period tax expenses nor any prior tax saving, because ना उसमें expense होगा और ना ही saving होगी, because both are equal. Now this is the income tax account परफॉर्मा. हियर डेबिट साइड में ऑफ कोर्स एडवांस टैक्स जो हमारा असेट है इसके लिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा. यहाँ पर जो है करंट ईयर का इनकम टैक्स पेड होगा थ्रू द बैंक, और यहाँ पर जो है आपका इनकम टैक्स पेबल और रिफंडेबल की जो एंट्री है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है एडवांस टैक्स की, ये रही. ठीक है, सो ये यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर ये डेबिट. नाउ सिमिलरली करंट टैक्स जो प्रोविजन है, करंट टैक्स जो है हमारा लाइबिलिटी है, दिस इज अ प्रोविजन. सो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है क्रेडिट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा. ठीक है, सो इनकम टैक्स पेबल रिफंडेबल यहाँ पर जो डेबिट है यहाँ पर देखिए आपका ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी रिवर्स एंट्री है यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर ये क्रेडिट होगा इसकी एंट्री. एंड देन द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कोर्स जो टैक्स एक्सपेंसेस रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. सो इट्स बिकम अ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा बिकॉज इट्स बिकम योर एक्सपेंसेस. देन प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंसेस का जो बनेगा, यहाँ पर जो भी इनकम टैक्स आएगा पेबल रिफंडेबल में, देखिए यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर डेबिट है, ऑफकोर्स यहाँ पर ये क्रेडिट होगा और देन ये जो ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में. ये हमारा एक्सपेंस है. नाउ ये अब जो नेक्स्ट मैं परफॉर्मा डिस्कस कर रही हूँ दैट इज प्रायर पीरियड टैक्स सेविंग. यहाँ पर जो सेविंग्स है वो इनकम टैक्स देखिए यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, रिफंडेबल पेबल जो रिफंड होगा जो यहाँ पर आपका क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर देखिए ये डेबिट हो रहा है सेविंग्स. ओके, एंड देन जो ये सेविंग है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. यहाँ पर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफकोर्स क्रेडिट होगा बिकॉज इट्स बिकम योर इनकम, इट्स योर सेविंग. नाउ द नेक्स्ट इज first we done with the income tax provision advance tax, and now the managerial remuneration, overall maximum managerial remuneration. Please understand this concept, how to pay the managerial or manager remuneration. As per the section 197(1) the Companies Act 2013, total managerial remuneration payable by a public company to its director, okay, including manager director, whole time director and its manager in respect of any financial year shall not be exceed 11% of the net profit, and net profit calculated in the manner laid down in the section 198. यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैनेजरल जो रेम्यूनरेशन है वो पब्लिक जो कंपनी होती है वो उसके डायरेक्टर्स को पी की जाती है. और डायरेक्टर्स में कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, एंड जो भी फाइनेंशियल ईयर के डायरेक्टर्स होते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स, उनको जो है रेम्यूनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दिया जाता अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 198. ओके, अ कंपनी विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव है, इन जर्नल मीटिंग में भी ऑथोराइज पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी अप्रूव है तो वो अपने जर्नल मीटिंग में उनको अथॉरिटी है कि वो 11% से ज़्यादा, मतलब नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा वो जो है रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर सकती है. ओके, देन see here I am discussing here some limits. It is further provided that except with the approval of the company in journal meeting, यहाँ पर जो है कुछ 4 conditions है, देखिए आप one by one. Manager personnel, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजर डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर एंड इट्स मैनेजर, इन ये सब जो डायरेक्टर्स हैं इनको मैक्सिमम लिमिट कितना है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है. ओनली वन मैनेजरल पर्सन है, अगर एक ही मैनेजर है, जैसे अगर मैनेजर डायरेक्टर भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है या सिर्फ मैनेजर हो सकता है, मगर इसमें से कोई एक ही पर्सन हो तो उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया सकता है. ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है. और मोर देन वन मैनेजरल पर्सन मतलब 2 जन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, इसमें कोई भी 2 जन होंगे, यहाँ पर कोई भी 2 लोग होंगे. सो इनको जो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम लिमिट में दिया जा सकता है. नाउ द 4th कंडीशन इज रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर हु आर आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर,
नॉर होल टाइम डायरेक्टर। अगर ऐसे डायरेक्टर्स हों जो ना ही मैनेजर डायरेक्टर है और ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, ऐसे केस में इन दिस केस देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर, इस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो इनको जो है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। और इन अदर केसेस, इसके अलावा अगर ये तीनों के अलावा कोई दूसरा है बंदा, तो उसको 3% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाता है। सो दीज आर द कंडीशन वी हैव टू remember when we are doing our final account, and the note is very important here. The 2017 amendment act removed the requirement of central government approval for the paying remuneration exceeding 11% of the net profit of the company. 2017 अमेंडमेंट के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था वो रिमूव किया गया है कि 11% नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हम रेम्यूनरेशन बढ़ा सकते हैं, तो इसको इस जो अमेंडमेंट के थ्रू इस अथॉरिटी को रिमूव किया गया है। एंड द अमेंडमेंट एक्ट 2017 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ लेंडर हु ड्यूज हैड नॉट बीन पेड ऑन टाइम। और इस अमेंडमेंट के अलावा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है थ्रू शेयर होल्डर्स और लेंडर्स के अप्रूवल के थ्रू, और ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिनके ड्यूज बाकी है और जिनका टाइम पर पेमेंट नहीं होता। ओके, देन वर्कविजिट्स, यहाँ पर जो है इसमें जो इंक्लूड होता है जो मैनेजर्स को ये रेम्यूनरेशन के अलावा और कौन कौन से फ़ायदे हैं, सो इन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। रेंट फ्री अकोमोडेशन, एक्सपेंडिचर इन प्रोवाइडिंग एनी अदर बेनिफिट और एमिनिटी फ्री चार्जेस एट कंसेशनल रेट। कभी कभी कंपनीज जो है हमको एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, सो ये जो है कभी कभी उनका कुछ कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है या फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन एंड सर्विसेज, expenditure incurred by a company or any insurance of life and any pension annuity और gratuity, जो भी expenditure है इंश्योरेंस से रिलेटेड वो जो है इनको मिलता है। then remuneration payable by the company having no profit or inadequacy profit without central government approval। यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऐसी कंपनीज में कैसे पे किया जाएगा जहाँ प्रॉफिट नहीं है या इनएडुकेट प्रॉफिट है और जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। फर्स्ट, कैपिटल से हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। ऐसी कंपनी जिनका कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है, तो मैक्सिमम लिमिट इनकी है 60 लाख रुपीज़। देन 5 करोड़ या अबव एंड अबव बट लेस देन द 100 करोड़, तो इनका यहाँ लिमिट बता रहा है 84 लैक्स। देन 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़, देन इनका लिमिट है मैक्सिमम लिमिट 120 लैक्स। एंड 250 करोड़ एंड अबव देन 120 लैक्स प्लस 0.01% of the effective capital in excess of rupees 250 crores. So there are the maximum limit is given according to the effective capital for the remuneration payable to the managers or manager remuneration. The above limit, see note, remember this note, the above limit shall be double by the special resolution of the shareholder, but the special resolution is required. Okay. Here I am discussing performa of और फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरल रेम्यूनरेशन। जो नेट प्रॉफिट आता है जिस पर मैनेजरल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट किया जाता है, उस प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन मैनेजरल रेम्यूनरेशन इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर द 198 Section 198 of the Companies Act 2013. Such net profits slightly differ from normal profit as disclosed by published statement of profit and loss. ये हमको बताना पड़ता है पब्लिक को कि कौन से प्रॉफिट पे या कितने प्रॉफिट पे रेम्यूनरेशन पे किया गया है, तो उसका जो कैलकुलेशन है इस तरह से किया जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यह आपको आउटर कॉलम में लिखना है और इसमें ये सब आइटम्स ऐड हो जाएंगे। आइटम डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितने भी आइटम्स जो हमने डेबिट किए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो जितने भी आइटम हैं आपको
ऐड करने हैं, जिसमें आते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रोविजन, जितने भी एक्सपेंसेस है एक्चुअली, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन डिस्कार्डिंग असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट रिटर्न ऑफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, प्रोविजन फॉर uncertain liabilities, lease premium return. ये all this amount which are the actual expenses we have to add to the net profit and then less the item credited to statement of profit and loss account. ये जो है हम इसको लेस कर देंगे, ये यहाँ पर जो भी हमारी रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और इनकम होगी वो होगी यहाँ पर, जैसे कैपिटल ऑन प्रॉफिट सेल ऑफ असेट्स, देन रेवेन्यू प्रॉफिट, देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी अंडरटेकिंग्स, profit on buyback shares, profit on redemption of shares, discount on redemption of shares, then profit on sale of investment. All the profit, all the income will come over here and we have to less these things, and whatever the amount finally we get are the net profit for the purpose of managerial remuneration. यहाँ पर जो है इस amount पर हमको managerial remuneration calculate करना है, whether it is 11%, 5%, 10%, 1%, whatever. So according to the condition. Then I have to discuss some treatment of various item appearing in the balance trial balance. यहाँ पर कुछ ऐसे items होते हैं जिनके बारे में, जिनका accounting entries क्या होगी स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं होता, तो ये जो कुछ important items है मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ जो ट्रायल बैलेंस में जिनकी एंट्रीज है और उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा. फर्स्ट इज डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर इज एक्चुअली अ कंपनी इज टेकन अ लोन फ्रॉम द पब्लिक एंड दिस interest is we have to pay to the public. So इसका नेचर क्या है, it has to be paid whether there is a profit or no profit. हमने लोन लिया है, हमको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमको उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो ये एक तरह से हमारा फाइनेंस एक्सपेंस है. इसके लिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में अंडर फाइनेंस कॉस्ट, जो है ये हमारा इस आइटम ऐड होगा फाइनेंस कॉस्ट में, इसको उसके अंडर लिखेंगे. डिबेंचर इंटरेस्ट लेस टैक्स. अगर इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट है और पेमेंट टैक्स करके दिया हुआ है तो कंपनीज हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स विच इज पेएबल टू द गवर्नमेंट. मतलब इस इंटरेस्ट पे जो भी हमको टैक्स पे करना पड़ता है वो यहाँ पर कंपनी वो लेस करके देती है. तो उसकी यहाँ पर देखिए दो एंट्री है, हमको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद ग्रॉस अमाउंट, जो भी ग्रॉस अमाउंट है वो, एंड देन टीडीएस शुड बी शोन इन द करंट लाइबिलिटी. जो भी टीडीएस रहेगा, टैक्स रहेगा, टैक्स डिडक्शंस, वो हमको लाइबिलिटी साइड में बताना पड़ेगा अदर करंट लाइबिलिटी में. ओके. देन डिविडेंड पेड. जो भी अमाउंट है डिविडेंड का वो शेयर्स पर हो सकता है, इक्विटी शेयर्स पे हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स पे हो सकता है. सो इट रिप्रेजेंट द पेमेंट ऑफ द लास्ट ईयर डिविडेंड. ये बताता है कि लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो कितना पेमेंट हुआ था. तो इसको हम, ये एक्सपेंस है हमारा, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट करना है इफ नो प्रोविजन इज देयर. ओके. इंटरिम डिविडेंड, एक्चुअली दिस डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द ईयर, और यू कैन से द 6 मंथ का जो हम डिविडेंड देते हैं वो आएगा, और इसको जो है वो भी हमको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अनक्लेम्ड डिविडेंड. अनक्लेम्ड डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो अभी तक कलेक्ट नहीं किया है शेयर होल्डर ने और कंपनी के पास ही है, तो इट इज द डिविडेंड नॉट yet collected by the shareholders. ये हमको current liability, of course we have to pay, so it's become your liability, so we have to show into the current liability. Call in arrears, the amount which is not paid by the shareholders actually, so it is the amount of call not paid by the shareholders and no dividend is paid on call in arrear. So इसको जो है call in arrears को deduct करना है subscribe capital में liability में. Forfeited shares, जो shares forfeit कर दिए गए हैं, रिटर्न ले लिए गए हैं बिकॉज ऑफ नॉट पेड द कॉल, सो इट इज द अमाउंट रिसीव ओरिजिनली और forfeited ऑफ शेयर्स. इसको हमको ऐड करना है सब्सक्राइब कैपिटल में. ठीक है, हमारा जो कैपिटल है उसमें. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, एक्चुअली ये कैपिटल लॉस है, मतलब फिक्टिशियस एसेट है. ये हमको असेट साइड पे अदर करंट एसेट में शो करना है या नॉन करंट एसेट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द अजम्पशन. मीन्स आप किस में ऐड करना चाहते हैं इसको, अदर करंट एसेट लिखना चाहते हैं या नॉन करंट एसेट लिखना चाहते हैं, उसमें आप लिख सकते हो. इट इज़ अ टाइप ऑफ द फिक्टिशियस एसेट. सिमिलरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑल्सो फिक्टिशियस एसेट. देयर आर एक्सपेंसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. सो यहाँ पर आपको करना है सेम एंट्री आएगी यहाँ पर. डू मीन्स यू हैव टू डू द सेम एंट्री व्हाट इज द अबव ईयर.
लूज टूल्स, दीज आर द टूल्स यूज, एक तरह के टूल्स जो यूज़ करते हैं कंपनी, और यूज़ करने के बाद इसको रख दिया जाता है एज एन एसेट। सो ये जो है हमारे इन्वेंट्री के जैसे ट्रीट होगा, स्टॉक जैसा ट्रीट होगा, सो इसको करंट एसेट में हम लिखेंगे। पेटेंट्स इज योर इंटेंजिबल एसेट, राइट ऑफ इन्वेंशन, सो इसे जो है हमको नॉन करंट एसेट या इंटेंजिबल एसेट्स में बताना पड़ता है। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, और उसकी एंट्री कहाँ पर आएगी इसका डिस्कशन करना ज़रूरी था। देन ओके, नाउ द नेक्स्ट इज interest on sinking fund investment. It is interest received on sinking fund investment. ये जो हमने अपना फंड अगर कहीं पर सिंकिंग डिबेंचर रिडम्पशन के लिए लगाया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए, सो इस जो फंड से हमको जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ योर इनकम, सो ये इंटरेस्ट रिसीव होता है एंड दिस इज एड टू द सिंकिंग फंड में। ओके, जो हमारा फंड है उसी में ये ऐड हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो है हमारा एक्सेस वैल्यू है इशू प्राइस पर, सो ऑफ कोर्स इट शुड बी रिटन इन द अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रांसफ़र, इट इज़ अ फीस चार्ज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, तो ये ट्रांसफ़र फीस जो है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना पड़ेगा अदर इनकम्स में, इनकम साइड पे, बिकॉज वी आर गेटिंग द फीस। देन कंज्यूमेबल, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सप्लाईज and we have to show into the profit and loss account. Consumers deposit, this is the deposit accepted from the customer from the company, and this we have to show into the current liability under the short term borrowing. Then ये जो है हमारा एक लाइबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म होता है, और कभी भी कस्टमर जो इस डिपॉजिट को ले सकते हैं, इसके लिए ये अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इट इज़ अ डिपॉजिट केप्ट विथ अदर एज अ सिक्योरिटी। देन वी हैव टू शो इनटू द लोन एंड एडवांसेस में हमको बताना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिंकिंग फंड, इट इज़ अ फंड क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी। रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सो वी हैव टू शो अंडर द रिजर्व एंड surplus. All funds will come mostly in the reserve and surplus. Underwriting commission, this is your fictitious assets, so it will come, it is a commission paid to the underwriter, so we have to show into the other current asset or other non-current asset. Railway sliding, that is created for the transport of item by railway wagons and it is owned by the company का खुद का होता है, it is type of a fixed asset, so we have to show into the tangible fixed asset. Royalty, it is the payment made for the getting a right, so that's why we have to show into the manufacturing account in the profit and loss account statement. Okay, then export subsidy and drawback, it is an इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो हमको इन सब्सिडी मिलती है वो गवर्नमेंट से मिलती है, ये एक तरह से इनकम है हमारी, इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में बताना पड़ता है। नाउ क्विकली वी हैव टू गो फॉर द इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट वी कांट सॉल्व द final account of the company, so please might be you done in your FY BCom and SY BCom, this is just type of a revision and how to show into the schedule 3 format, that is very important. So first adjustment is debenture interest due, ऐसा इंटरेस्ट जो अभी तक के हमें मिला नहीं है, सो ऑफकोर्स इसका जो ट्रीटमेंट होगा, पहली एंट्री आएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड दूसरी एंट्री आएगी अदर करंट लाइबिलिटीज में, बिकॉज ये ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, और इट इज ये जो है इसका रिमार्क है, इट इज माइट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी, वी हैव टू पे दैट, तो एक्सपेंस भी है हमारा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा एंड वी हैव टू शो अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, देन इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इनकम, बिकॉज हम जितना कमाते हैं उसके अगेंस्ट में हमको टैक्स पे करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ऐसा प्रोविजन जब बैलेंस शीट के डेट के बाद ये डिक्लेयर हो रहा है तो क्या होगा, तो हमको इसको एज अ नोट में बताना पड़ेगा, इसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। वी शुड राइट इनटू द फुट नोट माइट बी डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पेड अप कैपिटल, नॉट डिविडेंड इज पेड ऑन द कॉल इन एडवांस, सो ये जो है हमको रिमार्क देना पड़ता है। देन इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इनकम, देन ये जो है अगर चार्ज अगेंस्ट इनकम है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताना पड़ेगा इसकी एंट्री, एंड इट इज़
amount written off and we have to show the preliminary expenses. ये एक तरह का preliminary expenses में आएगा ये, and it should be written off every year. Okay, and we have to show into the other current asset. Interest on investment, ये हमारी income है, तो we have to show into the profit and loss account under the other income, and of course ये हमारा जो interest on investment है ये other current asset में इसकी entry आ जाएगी. ठीक है. Then claim against the company not acknowledged as debt, ये ऐसा claim जो हम जिसको डेप्ट एक्नॉलेज नहीं कर सकते, तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टू राइट इन टू द फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट एज अ स्टेटमेंट, एंड ऑफ कोर्स इट इज योर कंटीजेंट लाइबिलिटी. ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ पैसा हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ये, एंड देन वी हैव टू शो इनटू द रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. एक्चुअली दिस इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर है देन वी हैव टू शो इनटू द ब्रैकेट अंडर द इन्वेस्टमेंट. ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में इसका वैल्यू कॉस्ट पर दिखेगा, मगर हमको उसकी के नीचे ब्रैकेट में इसको बताना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है. दैट इज ओनली अ इंफॉर्मेशन, सो इट इज अ इंफॉर्मेशन ओनली एंड वी हैव टू राइट इट डाउन. इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट एक्चुअली. देन गुड परचेज बट नॉट रिसीव, गुड हमने परचेज किया मगर हमको रिसीव नहीं हुआ, ऐसे में जो है परचेज हमारा ऐड होगा, यानी ये एक्चुअली देखा जाए तो अनरिकॉर्डेड परचेज है, सो हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड टू द परचेज, और हम परचेज किससे करते हैं? क्रेडिटर से. तो सेकेंड इफेक्ट जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स में भी ऐड हो जाएगा. देन डिस्काउंट बिल नॉट मेच्योर्ड, ये जो है दिस इज ऑल्सो अ कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड वी हैव टू शो इनटू द फुटनोट. ऑलवेज रिमेंबर योर कंटीजेंट लाइबिलिटी, ऑलवेज यू हैव टू राइट इनटू द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट. देन क्लेम फॉर कंपनसेशन डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दिस ऑल्सो जो है कंपनसेशन जो है इसका भी आपको फुटनोट में बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो contingent liability. Then forfeiture of shares not recorded, ऐसे forfeitures of shares है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. तो पहले तो ये शेयर कैपिटल में इसकी वैल्यू डेबिट हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी. forfeitures ऑफ शेयर अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा, और कॉल इन एरियर्स में भी ये जो है अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. देन एरियर्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी डिविडेंड रहेगा हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का, अगर उसमें कुछ एरियर्स है वो उसको मिला नहीं है, देन दिस इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन और टाइप ऑफ अ कंटीजेंट लाइबिलिटी. दिस ऑल्सो वी हैव टू राइट इनटू द फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट. डेटर्स ऑफ ₹20,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months. डेटर्स जो है अगर रुपीज सपोज 20,000 है और जो आउटस्टैंडिंग है मोर देन 6 months, दिस अमाउंट आई हैव टेकन एज एन एग्जाम्पल. सो ड्यू टू मोर देन 6 months इसको पहले डेटर्स को क्लासीफाई करना है. दिस इज टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन ओनली, एंड दिस वी हैव टू शो इनटू द बैलेंस शीट, और इसको जो है अदर डेब्ट्स में लिखना है. ठीक है. देन टर्म्स लोन फ्रॉम द बैंक इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट. ओके. देन ये जो है टर्म लोन है बैंक का और फिक्स एसेट के थ्रू लिखा गया है, सो ये हमको जो है नोट में लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. इट इज ओनली द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. देन ऑल रिसीवेबल एंड डिपॉजिट आर गुड, ये दिस इज ऑल्सो द इंफॉर्मेशन वी हैव टू डिस्क्लोज अंडर द ट्रेड रिसीवेबल. वी हैव टू ओनली राइट एज एन इंफॉर्मेशन. Payment to auditors include rupees whatever the amount it will be for the taxation work. So here इसको भी जो है हमको disclose करना है how much we have to pay for the audit work and how much pay for the taxation into the profit and loss account. This we have to provide, we have to write as an information only. There is no calculation. Then managing director is entitled to a commission 5% of net profit before taxation and commission. So अब यहाँ पर हमको managing director को commission देना है. So it is a type of the expenditure we have to show into the profit and loss account, and other second effect will come into the current liability.
इशू ऑफ बोनस शेयर्स, यहाँ पर हमारे जब बोनस शेयर्स इशू होंगे तो ऑफ कोर्स ये जो रिजर्व्स में से इशू होते हैं, सो डिडक्ट फ्रॉम द जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, फर्स्ट इफेक्ट। एंड द सेकंड वी हैव टू ऐड इनटू द शेयर कैपिटल, बिकॉज जैसे ही शेयर इशू होते हैं हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। ओके, तो इट इज़ अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मीन्स यहाँ पर रिजर्व जो है हमारा कन्वर्ट होता है कैपिटल में, तो रिजर्व से लेस होगा और प्रॉफिट में ऐड होगा। देन रिटर्न आउटवर्ड इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल। रिटर्न आउटवर्ड अगर रॉन्गली इंक्लूड हो रहा है सेल्स में तो हमको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो पहले हमको रिटर्न आउटवर्ड से जो सेल में इंक्लूड हुआ है उसको सेल से माइनस कर देंगे और परचेज में लेस कर देंगे। सो लेस फ्रॉम सेल एंड लेस फ्रॉम परचेज, ये यहाँ पर देखना है, ठीक है। देन वेजेस इंक्लूड इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी। वेजेस अगर इंक्लूड है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन में, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो रॉन्गली उसको वेजेस में इंक्लूड किया गया है। सो हमको पहले जो रॉन्गली इंक्लूड है उसको लेस करना पड़ेगा और मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी ऐड टू द मशीनरी एंड डिडक्ट फ्रॉम द wages, and these are the 21 adjustment of your company's final account. I hope you understand all the adjustment, 21 adjustment and provision for taxation ka process. The second is I also discussed the remuneration of the managerial directors or managerial remuneration, that is the calculation is also important, and some item which is shown into the trading trial balance, what will be the effects and nature I discussed. If you have any doubt, please write into the comments, man. By that time, stay safe, stay home, have a good day. Bye everyone.